Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. We have completed the concept of transformation of sentences with some of the examples from each exercise. I have completed one sentences. In this video, I have brought the remaining sentences that we will solve here right now, right? तो all the exercises जितने भी आपके concept हैं उन पे based जो आपकी exercises थी, same exercises are there in this video. तो वही हम देखते हैं. सबसे पहले हमारा देखते हैं use of no sooner and than. किसका देखेंगे हम? Use of no sooner. Sentence number 1 we have already completed. We will start from sentence number 2. I looked into the crowd and saw a man with a straight back and a rugged face. This we will start from no sooner and than did. Why did will come? Because here past indefinite और उसकी auxiliary क्या होती है? Did. Look into the crowd than. यहाँ पे an आएगा that I have corrected. Then I saw. Remaining sentence will be as it is. Next is she read Annie's diaries and was moved to write to Otto. Again past indefinite. No sooner did. She read Annie's diaries and then she was moved to write Otto. Okay. Next is when the cousins appeared, we excitedly told them about old Tom. Appeared, again past indefinite. No sooner did the cousins appeared than we excitedly told them about the Tom. Remaining sentence will come as it is. After we were frisked for guns or tranquilizers darts, we were led into the Sanjay Gandhi's National Park. यहाँ पे were phrase यानी already auxiliary verb is already given, so no sooner के बाद हम were लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी plural है. Were we frisked for guns and tranquilizer darts than, and rest of the sentence will come as it is. ठीक है, तो I hope it is clear. No sooner and than. No sooner के बाद क्या लगाना जरूरी है? Than auxiliary कैसी आएगी? Whatever the tense is there उसके according auxiliary आएगी just after the no sooner. No sooner के बिल्कुल बाद ही वो helping verb या auxiliary आएगी. अगर auxiliary sentence में है तो वही आएगी. If it is not given, you have to see which tense is this and according to that you have to place. Next is use of not only but also. Sentence number 1 we have completed. Sentence number 2, the snake suddenly coiled up, raised its neck and viciously struck Death's arm. Here in this sentence, 3 actions done by the snake have been shown. So please don't get confused, as we have already read in the rules and regulation that not only will always come before the first action. So whatever the action, how many actions are coming after first action doesn't matter. सबसे पहले हम उसके पहले लगाएंगे before, जो सबसे पहला वाला action है. पहला action कौन सा है? Coiled up. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the snake not only suddenly coiled up. ठीक है, तो यहाँ पे not only हमने किसके पहले लगाया? Action number 1. Then comma raised its neck but also. End की जगह हमने क्या लगा दिया? But also viciously struck Death's arm. Next is the banana helps in regulating blood pressure and lowers the risk of stroke. एक ये इसका काम है benefit और ये दूसरा काम है. तो यहाँ पे हम लगाएंगे the bananas not only helps. ठीक है, यहाँ पे not only help आएगा, helps नहीं आएगा. In regulating blood pressure but also, यहाँ पे but also end की जगह आ गया, lowers the risk of the stroke. You cannot, next is you can misuse your lungs as well as use them well. यहाँ पे misuse और use them well दो आए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे you can not only misuse first action से पहले आया है your lungs but also is replaced by and. Next is he seated me in a comfortable chair and asked me what he could do for me. So पहले उसने क्या बोला? उसने पहले मुझे बिठाया and then asked me. तो हम क्या लिखेंगे? He not only. Okay, it is remain. I am writing here he. सबसे पहले हम pronoun लिखेंगे यहाँ पर. क्या आएगा यहाँ पर? He not only seated me. ओके यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एक्शन के पहले आ जाएगा not only seated me and then seated me in a comfortable chair. ये आ गया हमारा in a comfortable chair. and की जगह हमारा क्या आ जाएगा? but also asked me. The same sentence will be here and it is followed by a, ठीक है, asked me what he could do for me. ठीक है, तो seated से पहले आ गया हमारा not only और but also आ गया हमारा at the place of and. I hope it is clear. आगे चलते हैं. This is remove if and unless. ठीक है, इसमें formulas पढ़े थे हमने. if plus not equal to unless.
अनलेस इक्वल टू एफ प्लस नॉट, ओनली इफ, नेवर वाला भी पढ़ा था हमने, तो वो देखते हैं सारे हम. फर्स्ट सेंटेंस वी हैव ऑलरेडी डन. इफ यू डू नॉट टेक योर मेडिसिन यू विल नॉट लिव. सेंटेंस नंबर 2, द आंसर इज अनलेस यू टेक योर मेडिसिन. अनलेस हमने लगाया है, यहाँ पे क्या हो गया है, इफ और नॉट. जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इफ प्लस नॉट ये क्या होता है, इक्वल टू अनलेस. ठीक है, तो यहाँ पे नॉट डिसअपियर हो गया. अनलेस यू टेक योर मेडिसिन यू विल नॉट लिव. ठीक है, यहाँ पे यू विल नॉट लिव ये आ गया हमारा. इफ यू विल नॉट टेक योर मेडिसिन यू विल नॉट लिव. नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 3. Unless a woman is educated, her family does not benefit. यहाँ पे if unless already is coming here, तो यहाँ पे हम if use करेंगे. unless and not आ रहा है, यहाँ पे if आ जाएगा. If a woman is educated, her family benefits. क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है इसमें. unless equal to if plus not. ठीक है, unless equal to if plus not. तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, if a woman is educated, her family benefits. अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. फॉर्मूलाज को याद रखोगे आप, वहाँ पे पहले लिख लोगे तो आपको इजी होगा याद करने में. दिस आई हैव रिटन रॉन्ग, यहाँ पे ये आएगा एंड ये इधर आएगा. मैं दोबारा लिख देती हूँ ये. इफ से हमको सेंटेंस बनाना है, ऑलरेडी क्या आ रहा है यहाँ पे, अनलेस एंड नॉट. ठीक है, अनलेस और नॉट आ रहा है, यानी हम इफ से बनाएंगे तो इफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अनलेस प्लस नॉट. So it is here, yes it is here, unless and not, so we will make if a woman is educated her family benefits. Next sentence, unless there is a quality control the product will not sell. Again unless and not ये if में convert होगा. if there is quality control the product will sell, right? यहाँ पर फिर not नहीं आएगा, क्यों, unless and not का मतलब ही होता है if. ठीक है, तो अगर यहाँ पे not है next second part में तो आप वो हटा दोगे. Next is if the rain fails the crop will fail. if इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट होता है, तो यहाँ पे अनलेस द रेन फॉल्स द क्रॉप विल नॉट फॉल. इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे. यहाँ पे अनलेस प्लस नॉट है, इफ से स्टार्ट है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे अनलेस और ये आया हमारा यहाँ पे नॉट. नेक्स्ट इज इफ यू स्टडी यू विल पास. यहाँ पे इफ से स्टार्ट है, यानी कि हम अनलेस और नॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. Unless you study, you will not pass. Okay, so please remember this formula. Only this formula will help you to solve any kind of, कितना भी hard हो, you can solve. Unless he fails, he will not die the shame. Unless and not. Unless and not equal to क्या होता है आपका if. तो यहाँ पे if आ जाएगा. If he fails, he will die of shame. ठीक है, same formula. If you do your homework, I will not punish you. यहाँ पे if और not है, तो unless से बनाएंगे, क्या हो जाएगा, if plus not equal to unless. Unless you do your homework, I will punish you. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा unless और ये if से बन गया. I hope it is clear. एक हमारा फॉर्मूला और था यहाँ पे जो हमने देखा था, only if. ठीक है, only if हमारा क्या था, never. ओनली इफ में आता था नेवर प्लस अनलेस. ठीक है, नेवर एंड अनलेस ये आता था हमारा. ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे. सो दीज फॉर्मूलाज विल मेक दीज सेंटेंसेस इजी टू सॉल्व. नेक्स्ट चलते हैं. रिमूव टू. आई एम टू टायर्ड टू गो टू स्कूल. दिस वी हैव डन. सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट, ये प्रेजेंट में है. We are too thrilled to express it in the words. We are so, to की जगह आ गया so thrilled that we cannot. Cannot क्यों आया, because it is in present tense. Next is he is too proud. Too proud, टू की जगह हम क्या कर देंगे, very. मतलब हमको इसमें टू को रिमूव करना है. whatever we are changing, तो कहीं somewhere we will change with the so, where two parts of the sentences, and जहाँ पर so नहीं आएगा वहाँ पे very, extremely, ये सारे words हम लगाएंगे. Next is the hoardings is too large to not be noticed. The hoarding is so large that it can be easily noticed. Next is I have opted for Hindi and French too. तो यहाँ पे हम both का option ले लेंगे. I have opted both for Hindi and French. I hope it is clear. Try to solve the sentences like these more. Remove to. Okay, it is again repeated. Fine. Now question tag. फर्स्ट वी हैव डन yet his voice was pleasant. तो यहाँ पे was हमने लिया था और उसका बनाया था contraction, wasn't it? I believe in constantly raising the bar for myself. I believe in constantly raising the bar for myself. And I जहाँ पे आता है उसका हमेशा जो constant होता है, question tag होता है, वो हमेशा aren't से शुरू होगा, amn't से शुरू नहीं होगा, ध्यान रखेंगे. Mom and I broke down. Didn't we? Why didn't we? Broke down.
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे डिड नॉट ऑक्सिलरी आएगा, डिडंट आएगा। वी क्यों आएगा? बिकॉज हियर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज यूज्ड आई। जब आई है, आई का फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? वी, तो यहाँ पे वी हो जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज वी कैन नॉट encourage communalism. Can we? Very easy, question mark. We have hard work ahead. Don't we? We have hard work. Please don't misunderstood it like present perfect tense. No. यहाँ पे have is a main verb की तरह आया है, but the sentence is of present indefinite. That's why we will write don't we, because we is plural. Stop being stupid. Will you? What is this? It is an order. Order या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? It's an command. तो जहाँ पे command या order आता है वहां पर आपका question check क्या होता है? Will you then question mark. Next देखते हैं. I had gone to see novels. Novels here it's a kind of surname आप बोल सकते हो, ठीक है? जैसे हमारे होते हैं शर्मा जी, गुप्ता जी, वैसे novels, right? I had gone to see novels, hadn't we? ठीक है, यहाँ पे I had gone to see novels. Yes, I had gone to see novels, hadn't we नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा I. Okay, ये correct कर लेंगे. Next is we had reached the crossroads. यहाँ पे आएगा hadn't we. Next is hadn't. यही वाली auxiliary ले लेंगे, उसका negative बनाएंगे hadn't we. Next is I'll never worry about sports. Again, I will never worry about sports. Again, shall I. अब यहाँ पे नहीं पता है कि I will है या shall है, but whatever the auxiliary is suited with I के साथ shall आता है तो आप लास्ट में shall ही लगाओ, then question mark. I have done nothing for her. Have I. ठीक है, यहाँ पे ये है present perfect tense, तो यहाँ पे आप ये वाली auxiliary लोगे have I. I haven't nothing. I have done nothing. ये भी कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पे जहाँ पे भी नो, नॉट या किसी में भी आता है, यहाँ पे डायरेक्ट हैव के बाद नहीं आ रहा है नॉट, बट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो हमें वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इज नो वॉल इज टू हाई फॉर अस। ये भी नेगेटिव टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट का आ रहा है, तो नो वॉल इज टू हाई फॉर अस, इजंट इट एनी। जहाँ पे नो आएगा उसके कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? Any. Next is nearly everyone enjoys watching words, aren't they? Everyone जहाँ पे भी आएगा, everyone के लिए हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है they यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं. Interchanging interrogative to assertive sentences and vice versa. Change the interrogative sentences to assertive. First we have done what made cowboy a success. I do not know what made a cowboy a success. यहाँ पे आप don't भी लिख सकते हो, no problem. Next देखो, could I ever talk to him of any? I wonder I could ever talk to him any. Next is were we not sent by Annie to keep her father company. ये जितने भी sentences हैं वो related हैं interrogative, means आपको देखना पड़ेगा interrogative. So it is very easy to find out whatever the question mark is there, तो आपको पता चल जाएगा इसको assertive में change करना है उसके according. Like this is question mark, this is could I ever talk to him Annie. I wonder I could ever talk to him Annie. इसको आप ये भी लिख सकते हो I could never. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? I wonder I could ever talk to him Annie. इसको assertive में बनाना है, आप negative में कैसे बना सकते हो? मैं इधर लिख देती हूँ, ये इसको यहाँ पे लिख देती हूँ I could. ठीक है, assertive में affirmative and negative both we can make. So यहाँ पे लिख सकते हो I could never talk to him. I could never talk to him of any. तो ये क्या हो गया हमारा? affirmative भी बन गया और हमारा negative भी बन गया assertive sentence में. Were we sent by Annie to keep her father company? Were we not sent by Annie to keep her father company? This is question mark. यहाँ पे वर से शुरू नहीं होगा, अगैन इट इज रॉन्ग. वी सेंट बाय Annie to keep her father company. वर वी नॉट सेंट बाय, तो यहाँ पे वर और नॉट नेगेटिव है वो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी वर सेंट. ठीक है, तो ये वर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. मैं ऐसे कर देती हूँ, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा. जस्ट लेट मी चेक. ये वी वर, ये हमारा जो वी है, जो वी है हमारा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो वी वर सेंट बाय Annie टू कीप हर फादर्स कंपनी. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आएगा. ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. यहाँ पे हमारा क्या नहीं आएगा? यहाँ पे जस्ट वेट, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे क्या आएगा हमारा?
full stop. Next is it is a fateful moment for us. This is assertive. Interrogative में change करना है. Isn't it a fate? यहाँ पे assertive होता है question mark के लिए हम सबसे पहले उसका question tag बनाते हैं. Isn't it a fateful moment for us? Next is we think of our brothers and sister. Assertive है, इसका बनाएंगे interrogative. Don't we? ठीक है, क्या लगाएंगे? Question tag लगाएंगे यहाँ पे. We think. Present indefinite है तो उसका auxiliary आ जाएगा. Don't we think of our brother and sister? And last में आएगा आपका question mark. ठीक है, तो जो मैंने changes बताए हैं वो ध्यान रखेंगे. Mistake is done while typing, so just never mind it. Interchanging exclamatory to assertive sentence. हमको exclamatory से assertive करना है. It is horrible side, whatever horrible side, exclamation mark. He leads a most unhappy life. What an unhappy life he leads. Subject and then verb, exclamation mark. How stupid of me to forget your name. It was stupid of me to forget your name, full stop. यहाँ पे it से शुरू होगा because there is nothing to start with the subject. तो यहाँ पे how stupid of me means it was stupid of me. I wish I had studied for the examination. जहाँ पे I wish होता है वो if only. I had studies for the examination. जो I wish है वो if only में change हो जाता है. He was indeed amazing. How amazing he was. Auxiliary को ध्यान रखेंगे और exclamation mark भी ध्यान रखेंगे. ऑप्शन में आपके ये भी हो सकता है how amazing he was and then इंस्टेड ऑफ एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप होगा सिर्फ, तो वो भी गलत होगा. तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट इज अफर्मेटिव टू नेगेटिव करना है हमको. वासा लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, डिड नॉट फाइंड इंटरेस्ट. यहाँ पे हमने ये बनाया था पहले. द कॉरस्पॉन्डेंस कंटिन्यूड. कंटिन्यूड का हमें अपोजिट करेंगे. द कॉरस्पॉन्डेंस डिड नॉट ब्रेक. वाई डिड नॉट? बिकॉज दिस इज पास्ट indefinite. Next is Shivaji was the best king that ever ruled over Maharashtra. अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है जो बेस्ट, उसका हम सुपरलेटिव डिग्री में ही एंटोनिम बनाएंगे. ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव या कंपैरेटिव में बना दो. तो बेस्ट का जो सुपरलेटिव अपोजिट होता है वो होता है वर्स्ट. शिवाजी वॉज नॉट द वर्स्ट किंग. ओके, सो द मीनिंग इज सेम. ही इज समटाइम्स सैड. ही इज नॉट ऑलवेज सैड. या इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं, ही इज समटाइम्स हैप्पी. तो ये अपोजिट हो गया ना. यहाँ पे हमने सैड का हैप्पी कर दिया और यहाँ पे हमने समटाइम का ऑलवेज कर दिया. यहाँ पे डैड वुड स्टैंड क्लोज बाय. डैड वुड नॉट स्टैंड अफार. क्लोज बाय मतलब हमारे पास है यानी कि दूर नहीं है. सो इट्स डन. नेक्स्ट देखते हैं हम. अभी देखते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव. द किंग सेंट, इसी के आगे की एक्सरसाइजेस सेंटेंसेस हैं. द किंग सेंट वर्ड टू द प्रिंस नॉट टू वेस्ट गोल्ड ऑन गेटिंग हिम बैक. अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है द सेंटेंसेस आर लॉन्ग कि विच थिंग यू कैन टेक फॉर द चेंज. वेदर देयर इज अ ऑक्सिलरी वर्ब तो उसको नेगेटिव में चेंज करोगे तभी आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होगा. अदरवाइज यू कैन टेक जस्ट ट्राई टू पिक द वर्ड ऑफ विच यू कैन पुट द एंटोनिम, जिसका अपोजिट लगा सको. वो वर्ड आपको ढूंढना है इसमें. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो आप ढूंढ सकते हो प्रिंस, नॉट टू वेस्ट. नॉट टू वेस्ट का मतलब क्या हो गया? सेव. ठीक है, यही तो मतलब हुआ. तो ये द किंग सेंट वर्ड टू द प्रिंस टू सेव गोल्ड ऑन गेटिंग हिम बैक. नेक्स्ट इज ओनली अ रिच मैन कैन अफोर्ड सच लग्जरीज. जहाँ पे ओनली आएगा वहां पे नो वन आप लिख सकते हो. नो वन except a rich man can afford such luxury. Next is he had no passport, no money and was not allowed to move out. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे आप देखो was not allowed को आप क्या बोल सकते हो? forbidden. मना करना मतलब जो परमिट नहीं हो उसको, उसके लिए हम वर्ड लिखेंगे, उसके लिए वर्ड आएगा forbidden. I had no passport, no money and he was forbidden. ठीक है, was not हटा के हमने उसका अपोजिट लिखा forbidden to move out. It is the only thing that can save the city. यानी कि nothing but this thing. यहाँ पे हमने किससे बनाया? It is the only thing. तो nothing but this thing can save the city. Number 10 का हमारा क्या है? Nobody was absent means everybody. उसका मतलब क्या हुआ? कोई absent नहीं था, मतलब everybody was present. Simple. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों के ही अपोजिट लगा दिए. Absent का present and nobody का everybody, and it's done. नेक्स्ट देखते हैं इंपैरेटिव टू असर्टिव. इंपैरेटिव यानी कमांड रिक्वेस्ट, उसको असर्टिव में सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स एज दे आर. इंपैरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब ऐसा नहीं होता है. सेंटेंस डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं. यू शुड एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स एज दे आर. ये क्या है? एडवाइस है, तो यहाँ पे हमने शुड लगाया है. To taste your out capacity, I'm so sorry, to test your out capacity, take a deep breath and open the
माउथ वाइड, ये भी एक एडवाइस है. तो यू शुड टेक द डीप ब्रेथ एंड ओपन माउथ टू टेस्ट योर कैपेसिटी. इफ यू आर रिवर्सिंग द सेंटेंस, it doesn't matter, meaning और formation सही होना चाहिए, then you can make like this. No hiding my chin today. Today my chin is not hidden. Next is today my chin is not hidden. No hiding my chin today. Today my chin is not hidden. या यहाँ पे लगा सकते हैं today my chin is not visible. नेक्स्ट इज डोंट कीप फिंगरिंग द स्पॉट ऑन योर फेस. अभी ये अगेन देखो, ये एक तरह की एडवाइस है. इसमें जितने भी इम्पेरेटिव होते हैं वो ज़्यादातर एडवाइस फॉर्म में होते हैं. जहाँ पे कमांड के सेंटेंस आएंगे वहाँ पे आपको यू शुड की जगह लिखना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड. यहाँ पे इस तरह का कोई है नहीं, बट यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड. ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड. या कमांड में जहाँ पे कोई ऑर्डर होता है वहाँ पे आप लिखते हो विल यू. ठीक है, रिक्वेस्ट होता है तो वोंट यू लिखते हैं जब हम इस तरह के सेंटेंस होते हैं. यू शुड नॉट कीप फिंगरिंग द स्पॉट ऑन योर फेस. यहाँ पे ये भी एडवाइस है. कीप बैग्स इन बिटवीन रेदर दैन बिसाइड योर फीट इज अनदर एडवाइस. तो यहाँ पे यू शुड कीप बैग्स इन बिटवीन दैन बिसाइड्स योर फीट. तो हमने ये बनाया. जो मैंने आपको बोला था कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं. सो आई एम फाइंडिंग दिस सेंटेंस इज नॉट रिटन राइट. नो हाइडिंग माई चिन टुडे मीन्स माई चिन इज नॉट हाइडिंग मीन्स इट्स विजिबल. ओके, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा. टुडे माई चिन इज शोइंग. ओके, शोइंग लिख देंगे या हम लिख देंगे विजिबल. ओके, अपोजिट करना है ना यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे नॉट हिडन नहीं आएगा, शोइंग या विजिबल. दिस इज मोर एक्यूरेट. ये ज़्यादा सूट कर रहा है तो आप ये लगाना. नेक्स्ट देखो, imperative टू असर्टिव, उसके आगे का पार्ट है गेट अ थॉरो मेडिकल चेकअप बिफोर यू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप. फिर भी ये क्या हुआ, एक तरह से एडवाइस है ना, सजेशन. तो जो आपका एडवाइस होता है वहाँ पे यू शुड गेट अ थॉरो चेकअप एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल कम लाइक दिस. ओपन स्कूल्स एंड मॉन्स्टरीज फॉर द पीपल. अगैन इट इज एन एडवाइस, यू शुड ओपन. ठीक है. नेक्स्ट इज अलाउ योर फ्रेंड्स टू बी देमसेल्व्स. डोंट लेट योर सेल्फ बी यूज्ड बाय योर फ्रेंड्स. ये आप लर्न कर लेना. ठीक है, एक तरह से ये थोड़ा सा मीन्स द टोटल सेंटेंस इज चेंज. डोंट स्पीक व्हाट शुड नॉट बी शेयर्ड. यू शुड नॉट स्पीक. यहाँ पे अगेन एडवाइस दे रहा है कि भाई डोंट स्पीक व्हाट शुड नॉट बी शेयर्ड. यू शुड नॉट स्पीक व्हाट शुड नॉट बी शेयर्ड. नेक्स्ट इज डोंट लेट योर सेल्फ बी यूज बाय योर फ्रेंड. दिस इज अगैन बिल्कुल 22 वर्षा जो आ चुका है ऊपर, तो आप दोनों ही तरह से इसको लर्न कर लेना जो भी आता है. अलाउ योर फ्रेंड्स टू बी देमसेल्व्स, मतलब जैसे हैं वो वैसे ही रहें. सो इसका क्या मतलब हुआ, डोंट लेट योर सेल्फ बी यूज्ड बाय योर फ्रेंड्स मीन जो जैसा है वो वैसा ही रहे और ऐसे ही हमको फ्रेंड्स बनाने हैं. मीन्स वट एवर टाइप आई एम यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट. अभी मिक्स्ड एक्सरसाइज देखते हैं. इसमें अभी हमने अलग अलग एक्सरसाइज देखी थी बेस्ड ऑन वन टॉपिक. नाउ दिस इज द वन दैट ऑल द टॉपिक्स हैव इंक्लूडेड हियर. बट दे हैड नो मनी. वी हैव टू मेक अफर्मेटिव बट दे वर पुअर. ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, दे हैड नो मनी मीन्स दे वर पुअर. नेक्स्ट इज वी हैव टू मेक असर्टिव. हाउ टू नरिश फ्रेंडशिप. यू कैन नरिश फ्रेंडशिप. दिस इज असर्टिव सिंपल सेंटेंस. माई लैक ऑफ विजन इज माई स्ट्रेंथ. क्वेश्चन टैग इजंट इट. ये किसके लिए आया है, लैक ऑफ विजन. ये क्या है हमारा, दिस इज, ये क्या है, ये नॉन लिविंग है तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट प्रोनाउन आएगा. नेक्स्ट देखो, ही ऑलवेज आंसर्ड. इफ इट इज हायरिंग मैं ऐसे लगा देती हूँ. ठीक है, ये इट इसके लिए है. ही ऑलवेज आंसर्ड, नेगेटिव बनाना है मीन्स ही वॉज नेवर अनआंसर्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगर आपने नेवर आंसर्ड लिख दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. नेवर के साथ यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या, ऑलवेज के अगर हमने नेवर लिखा, आंसर्ड का भी हमको अपोजिट बनाना पड़ेगा, अनआंसर्ड. ठीक है. हिज वॉइस वॉज प्लेजेंट, एक्सक्लेमेटरी बनाना है. हाउ प्लेजेंट हिज वॉइस वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट देखो, what a beautiful piece, exclamation mark. It is a very beautiful piece, question mark. Academic institution in India are less than sold on the idea of inclusive education. Are less than sold, इसका मतलब क्या हुआ, are not sold. Next is mom's condition took a turn for the worse. My performance is also taking a turn for the worse. Not only and but also, दो एक्शन है, mom's की condition है और मेरी performance. तो सबसे starting में आएगा not only mom's condition took a turn worse but यहाँ पे also यहाँ पे आ रहा है तो we will take it here as it is. तो also हम दो बार नहीं लगाएंगे, एक ही बार आए.
I hope these all exercises are clear. Don't get just worried about that if you find very long sentences or आप कुछ भूल जाओ. Just calmly go through the sentence, try to remind the rules and regulation or the formula, you will be able to complete. Next is what a feeling. We have to change in assertive. It is a very nice feeling. Whatever you are writing, अगर आपने यहाँ पे very नहीं लिखा, it is a nice feeling, तो it will not create a kind of wonder कि it is very nice. तो यहाँ पे very लगाना जरूरी है. It's an adverb जो frequency बढ़ाता है कि हाँ बहुत अच्छा, ठीक है. This one was probably for his mom. Negative बनाना है तो this one was probably for no one. It is very smartly changed except his mom. यहाँ पे पूरा आएगा for no one except his mom. Next is I'm trying to help. We have to add a question tag. I am trying to help. Aren't I? Again, please remember it. Wherever you have to place the question tag with I, वो बिल्कुल aren't ही लगेगा. End में amn't नहीं लगेगा. If I don't thank an Indian and die, I'll never attain peace after that. Use unless. अनलेस देखो यहाँ पे इफ और क्या आया हमारा नेवर, ठीक है. नॉट जरूरी नहीं है, नेगेटिव होना चाहिए. तो इफ प्लस नॉट क्या था हमारा, अनलेस था, तो हम अनलेस से बनाएंगे. अनलेस आई डोंट थैंक, तो यहाँ पे अनलेस आई थैंक आ जाएगा, डोंट नहीं आएगा, ठीक है. इसको ध्यान रखेंगे. आई हैव मेक इट करेक्ट, मैं फिर से कर देती हूँ. अनलेस आई थैंक द एंड इंडियन, यहाँ पे एन इंडियन है, डी नहीं है. ओके, मिस्टेक्स आर देयर इन द टाइपिंग, प्लीज इग्नोर दैट, बट यहाँ पे मैं करेक्ट करती जा रही हूँ. अनलेस आई थैंक इंडियन एन इंडियन एंड आई die, I will attain peace after that. Next is we have often been unworthy. देखो यहाँ पे अगर आपको अच्छी तरह से आपके that rules and regulation if you know याद है, तो you can find out the mistakes in the typed matter as I am finding here, right? We have often been unworthy followers of his. Interrogative बनाना है have been not often, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये जो verb थी, हमने auxiliary verb को यहाँ रखा है, have be often been unworthy and then question mark. Next is isn't it there a court order against this? Make assertive. There is a court order against this, ठीक है. isn't it की जगह हमने क्या लगा दिया, there is a court order, और ये बन गया हमारा assertive. अभी देखो यहाँ पे क्या था, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. असर्टिव इंक्लूड बोथ ऑफ द वन, बट ऑलरेडी इट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव. मींस जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बोथ विल बी वैनिश्ड एंड वहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, आपका सिर्फ आ जाएगा असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस. दे शेयर देयर क्लॉथ्स एंड टॉयज नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो. तो क्लॉथ्स फर्स्ट है, टॉयज बाद में, क्लॉथ से पहले आ जाएगा. बट प्लीज डोंट रिमेंबर पॉसेसिव प्रोनाउन. क्लॉथ्स के साथ देयर, देयर क्लॉथ से जुड़ा हुआ है, तो आप देयर ऐसा नहीं कि दे शेयर देयर नॉट ओनली क्लॉथ्स, नो, ऐसे नहीं होगा. दे नॉट ओनली शेयर देयर क्लॉथ्स, इसको आप अलग नहीं करोगे, ठीक है. तो यहाँ पे एंड की जगह आ जाएगा हमारा बट ऑल्सो. नेक्स्ट इज एज सुन एज शी गो होम Carrion hurried to her. मतलब Carrion again it's a name of a baby, hurried to her. So no sooner and than, as soon as she got. सबसे पहले हम tense देखेंगे. no sooner में it is past indefinite, means auxiliary did will be used after no sooner. Did she get home? जब यहाँ पे did लगाया है तो प्लीज ये ध्यान रखेंगे कि verb का फर्स्ट फॉर्म आएगा. आपके MCQs में इस तरह से आ सकता है, no sooner did she got home, एक ये हो सकता है. नेक्स्ट हो सकता है no sooner did she get home. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट इफ ऑलरेडी did has come तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड यहाँ पे आपका then आएगा THAN then. AN और EN का ध्यान रखेंगे, इसमें भी आपको कंफ्यूजन मिल सकता है. यहाँ पे एक MCQ में आपको EN देंगे और एक में आपको AN देंगे, आपको AN सेलेक्ट करना है. ओके, सो इनफ एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस exercises I have make you to complete. इफ़ यू वॉन्ट, अभी ये इसके लिए ये ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लिटिल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसमें कुछ याद भी करना है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ध्यान रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमें बहुत ध्यान रखना है. एंटोनिम, सिनोनिम, फॉर्मूलाज एंड देन वाइस वर्सा, द यूज़ ऑफ द अनलेस, एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो प्लीज़ विद द काम माइंड जस्ट गो थ्रू विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट कीप दैम इन योर प्रैक्टिस टिल योर एग्जामिनेशन. उसके बाद आप करो या नहीं करो, इट्स योर चॉइस, बट एग्जामिनेशन तक प्लीज डोंट स्किप द प्रैक्टिस, अदरवाइज आप भूल जाओगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नाउ वी विल मीट फॉर द वोकैबुलरी पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.